So how was the paper? It was good. बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। नहीं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें। How was the paper? इजी मतलब अच्छा था, मॉडरेट। तो अभी क्या है, डर लग रहा है हिस्ट्री के लिए या अच्छा चला जाएगा? अब मतलब जैसा मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यारा जा सकता है। वैसे तो मैं हिस्ट्री में थोड़ी सी हीरो हूँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अभी हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो आइए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं उनका पेपर कैसा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाउ वाज द पेपर? It was good. ओके, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 75 above. 75 अबव आउट ऑफ 80. 70 का पेपर था, 80 का था? 80 का. 80 का पेपर था, ओके। कौन सा सेक्शन आपको लगा कि यार थोड़ा सा ट्रिकी था, और कौन सा ऐसा सेक्शन लगा कि यार ये तो एकदम मज़ा ही आ गया? Tricky, I think section C and section E. Surprisingly, the long answers were good. Long answer 6 marks questions, they were good. Okay, tell me something about time management. Like, what do you think? कि was the time sufficient for you to do the paper, और थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था, या किस तरीके का पेपर? लेंदी था, बहुत ठीक है, एकदम अप टू द पॉइंट था, कैसा था? Time was enough. Lengthy paper तो नहीं था. I finished 20 minutes earlier and yeah, it was not lengthy. It was up to the mark. How balanced was the paper in terms of contemporary politics and theoretical concepts? Contemporary politics in my set, the questions were like majorly of contemporary politics. If you talk about world politics, the questions were less from the world scenario, and it majorly talked about India in the long answers and world in the section C. Okay, what do you think? Like, were there any current affairs questions? If yes, then which type of questions or what questions? There was one question related to the current affairs in the MCQ. So yeah. Can you tell us which question was that, or what was the question? It was related to the nuclear policy. So the answer for that is the no first use policy review, because recently the Modi government told that we will not use the no first use policy against Pakistan. Okay. Were there any questions related to recent elections, or you can say global politics or international relations? No, not. There were no questions from the recent elections, be it Lok Sabha, be it Rajya Sabha, any election. No, not from recent elections. Okay. Like, in your set particularly, focus was on like what, international relations or geopolitical, or the Indian politics? It was balanced. Quite balanced. Okay. So, if you talk about section A, the assertion reasoning questions, or maybe section 1, so how were the questions in that section? Assertion reasoning questions were good. One of them was a bit confusing, but it was still I was able to do it. Okay, so next paper कौन सा है आपका? My next paper is computer science. How well prepared are you? I have to revise. Certainly I have to revise. जो पिछला पढ़ा था वो तो थोड़ा बहुत याद है, but I have to revise. Okay, कब है कंप्यूटर साइंस का पेपर? 29. 29। तो अभी जाके रेस्ट करना है, या फिर अब जाके थोड़ा फन वन कर लेंगे? कंप्यूटर साइंस तो हो ही जाएगा। नहीं, कंप्यूटर साइंस आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है. सो आई विल स्टार्ट बाय टुडे ओनली. Okay, what do you want to pursue in future, और humanities क्यों लिया? Humanities, I took humanities out of interest, and maybe future में civil services I'll go for that. पॉलिटिकल साइंस कैसा लगता है, और पॉलिटिकल साइंस में आपका फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट, सॉरी चैप्टर? Political science is my favorite subject actually, and I love the Indian. If you talk about Indian politics, then I love the you can say that the era of
the coalition politics. You can say that is an easy chapter. You talk about regional aspirations. That also takes my interest a lot. And if you talk about world, then geopolitics is my interest. So how was the paper? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा. अपनी परफॉर्मेंस को 1 to 10 के स्केल पर रैंक करिए. 9.2. 9.2. हाउ मच मार्क्स यू एक्सपेक्ट? कितना लगता है कि स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 70? More than 60. More than 60. Somewhere in between 60 to 70, right? Yep. Okay. कौन सा सेक्शन आपको लगता है was a bit tricky or difficult, and which section do you think can fetch you maximum marks and why? Section B और Section D. Section B and Section D क्या? Section B was short questions and Section D में थे maps and all. Okay, तो आपको लगता है ये मार्क्स आपको दिलाएंगे या मार्क्स कट सकते हैं इनमें? मार्क्स थोड़े से कट सकते हैं, थोड़े बहुत, 1-2. हाँ. अगर हम सेक्शन ए की बात करें, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए या बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चंस हो गए, तो आपको क्या लगता है कि किस टाइप के आपके हिसाब से आपके सेट में क्वेश्चंस थे? मतलब ठीक है, NCERT बेस्ड थे और बहुत प्यारे थे, मतलब चैप्टर से ही थे और इजी भी थे. ठीक. ओके, आज के पेपर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम और होता तो आप किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते? मैं इमरजेंसी पे ज़्यादा फोकस करती, जो इंदिरा गांधी वाला चैप्टर है. हाँ, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. ठीक है. कितना बैलेंस था पेपर? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स या थ्योरेटिकल या फिर करंट पॉलिटिक्स अगर लें उस वे में? थियोरेटिकल पॉलिटिक्स था उसमें ज़्यादातर, और मतलब मेरे हिसाब से तो हाँ यही ज़्यादा था. फैक्चुअल नॉलेज या एनालिटिकल थिंकिंग, किस पर आपके सेट में बेसिकली ज़्यादा फोकस था? सेक्शन E वाज बेस्ट. ओके, अगर एनसीईआरटी की बात करें आपकी पॉलिटिकल साइंस की, तो डू यू थिंक पेपर पूरा एनसीईआरटी से आया था या कहीं से कुछ घुमा कर आया हो? नहीं, पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें, पूरा पेपर NCERT बेस्ड था. Okay, as per you, which topic do you think had the maximum weightage in your paper? Maybe the USSR and USA conflicts and all. और अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें, जियो पॉलिटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस थे? लाइक इंडियन पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस था या जियो पॉलिटिक्स पे? मेरे सेट में तो इंडियन पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस था. उसमें पार्टीशन के क्वेश्चंस थे कुछ, एंड मैनी थिंग्स अबाउट इंडिया एंड इंदिरा गांधी के जो टाइम पीरियड में जो भी चल रहा था उन सब चीज़ों के. ओके, नेक्स्ट पेपर कौन सा है? हिस्ट्री. हिस्ट्री. तो अभी क्या है, डर लग रहा है हिस्ट्री के लिए या अच्छा चला जाएगा? अब मतलब जैसा मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यारा जा सकता है. वैसे तो मैं हिस्ट्री में थोड़ी सी हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, तो अभी जाके रेस्ट करना है या फिर अब जाके वापस से पढ़ाई पे लग जाना है डेडिकेटेडली? अभी जाके रेस्ट करना है मुझे, अभी जाके रेस्ट करना है, क्योंकि कल सुबह से मैं जगी हुई थी और सुबह सिर्फ 3 बजे मैंने 2 घंटे की नींद ली है, इस वजह से. That's hard. Okay, आपको फ्यूचर में क्या परस्यू करना है? मुझे फ्यूचर में म्यूजिशियन बनना है वैसे तो. Why humanities? बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज़. मुझे जानना था कि मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है एक्चुअली में, मुझे जानना था पॉलिटिक्स के बारे में. So do you think that subject has helped you अभी तक? हाँ, जब मैं जान पाई हूँ कि लाइक इंडिया में किस चीज़ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑल, बाकी चीज़ों के बारे में, अदर कंट्रीज़ के बारे में. पॉलिटिकल साइंस में आपका फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट कौन सा है? वैसे बोला जाए तो कह सकते हैं मेरा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली. फेवरेट टॉपिक कोई नहीं है पॉलिटिकल साइंस में आपका? नहीं, मुझे पॉलिटिकल साइंस पसंद नहीं है, पर ठीक है, अच्छा गया पेपर तो अब पसंद है. ओके, थैंक यू. हाउ वाज द पेपर? इजी मतलब अच्छा था, मॉडरेट. ओके, अपनी परफॉर्मेंस को 1 से 10 के स्केल पर रैंक करिए. 1 इज एक्सट्रीमली पुअर और 10 इज आउटस्टैंडिंग. आप बीच में भी कहीं रैंक कर सकते हो. 7. 7. क्या डिफिकल्ट लगा? डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं था, मतलब सब ठीक था. कौन सा आपको ऐसा सेक्शन लगता है जो आपके मार्क्स कट सकते हैं, और ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आपको लगता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है?
सेक्शन डी, और मुझे लगता है कि मतलब उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और सेक्शन बी और सी मुझे लगता है कि जिनमें मतलब कम मार्क्स होंगे, ज़्यादा मार्क्स कट सकते हैं। ओके, अगर सेक्शन ए की बात करें, बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चन या कहने असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसमें? बहुत इजी थे या हार्ड थे या करंट से कुछ था? ईजी थे। ठीक है। अगर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो उससे रिलेटेड ज़्यादा था, हिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड था, या फिर इन जेनरिक जो थ्योरेटिकल सेक्शन होता है वो ज़्यादा था? मेरे हिसाब से तो सभी था आई गेस, मतलब सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका? सोशियोलॉजी। क्या तैयारी है उसकी, मतलब आता है या फिर थोड़ा मुश्किल लगता है? नहीं, मुश्किल तो नहीं लगता, बस है, रिवीजन है, बाकी तैयारी अच्छी है, बस रिवीजन करना है उसका। पॉलिटिकल साइंस में फेवरेट चैप्टर या फेवरेट टॉपिक कौन सा है आपका? वैसे तो मतलब पॉलिटिकल है इंटरेस्टिंग, सभी अच्छे लगते हैं, तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं बोल सकती मैं। ओके, तो अब जाके रेस्ट करना है या फिर ऐसा है कि ठीक है अब पर वापस से पढ़ाई कर लेते हैं? नहीं, अभी तो रेस्ट करना है, इतनी मेहनत के बाद तो रेस्ट ही करना होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट से जिनका था आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर। मोस्टली बच्चों ने पेपर को इजी रैंक किया और सेटिस्फैक्शन उनके फेस पर दिख रहा था। बच्चों ने अपने फ्यूचर प्लान्स भी शेयर किए, उनको कौन सा सेक्शन बहुत डिफिकल्ट लगा और कौन सा सेक्शन उनको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है, ये भी बच्चों ने हमें बताया। साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में कितना है ये भी बच्चों ने हमारे साथ शेयर किया। अगले पेपर में भी हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।